We will continue the previous video. Students, one thing you have to note in the previous video, by mistake I have written the date 21st July. Sorry, it was 21st May. Please correct it. 21st May date, previous video I have written 21st July. So make it change here. Now we will come to the point intersecting line. Same chapter, exercise 16, intersecting lines. Now what are these intersecting lines? Two lines having a common point are called intersecting lines. When I'm taking one point, if I'm taking O points, and when we cut two lines, एक आपकी लाइन है A, B, it is a line, तो आपने arrow show करनी है both side, and one line is P, Q. Now these two lines, they are cutting each other, and it has a common point O. So these lines are known as intersecting lines. When two lines cut each other, दो lines, line segment नहीं, lines. When two lines cut each other, they are known as intersecting lines. और इस point को हम क्या कहते हैं? Point of intersection. These point, जो आपका common point होता है उसको कहते हैं point of intersection. And intersecting lines is when two lines cut each other at a common point. Then comes concurrent lines. Three or more lines in a plane are said to be concurrent if they all intersect at the same point. Now also there is one point, common point है, और आपकी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग में आपने दो लाइंस कट करी थी, पर कॉन्करेंट लाइंस में आप 2-3 से ज़्यादा भी लाइंस को कट कर सकते हो. ओके, सो दीज आर लाइंस बट इट्स कॉमन पॉइंट इज ओ. ये सब आपकी क्या है? लाइंस. सो 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन, ये प्लेन है, आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट. अब इस पॉइंट को क्या कहोगे आप? Point of concurrence. जब दो लाइन्स कट करती हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड इट्स कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड व्हेन 3 और मोर लाइन कट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट at the same point, it is known as concurrent lines. And these common point को आप क्या कहते हैं? Point of concurrence. Now we will come to the last but not the least, parallel lines. Now what are parallel lines? Two lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common. दो lines ले लो आप. This is a line and this is also one line. Okay, this line is L and this is M. इसमें आप क्या देख रहे हो? Two lines are there but they have no common point. कोई common point तो नहीं है, but their distance जो है, इनका बीच का जो distance है वो हमेशा क्या होगा? Same. Distance between these lines always remains the same. कोई भी line, जैसे हम ये भी lines बना लिए, this is also known as parallel lines because their distance is same and it can move to any directions. So पैरेलल लाइंस, अब मैंने एल और एम लाइन ली थी, अब इसको सिम्बलाइज कैसे लिखोगे? एल, टू लाइंस ड्रॉ करोगे, एम. इट इज़ कॉल्ड एज एल इज़ पैरेलल टू एम. ये आपका सिंबल है. और इसको कैसे बोलोगे? एल इज़ पैरेलल टू एम. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन. दो लाइंस हैं जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बट द डिस्टेंस between them is same. Relating to these geometrical concepts, we will come to the small exercise 16a, which you have to do it in a book. Only 2 parts are there which you have to do it in the notebook. Rest of the parts you will do it in the notebook only, book only. How many, exercise 16a, question number 1, first part, how many end point does a line segment? Line segment AB में कितने points होते हैं? See here, we have done line segment, और line segment AB में कितने end points थे? 2, 1 and 2. तो line segments में कितने end points होते हैं?
2. Similarly, how many endpoint does a ray AB have? रे की थी आपने, what was ray? एक पॉइंट था और ऐसे आपने लाइन ड्रॉ करी थी, तो एक ही पॉइंट था ना आपके पास, then only it can endlessly going to any direction. So how many endpoint does a ray AB have? 1. Yes ही था. How many endpoint does a line AB have? अब लाइन AB में कोई एंड पॉइंट होता है? नो, बिकॉज लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, पर लाइन ए बी में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इनटू एनी डायरेक्शंस. बोथ डायरेक्शंस में आप एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनेट लेंथ? अब आपको सिंबल बताए थे, विच इज़ अ सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है? दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रे, क्योंकि एक पॉइंट और एरो है. व्हेन देर आर 2 एरोज दे आर लाइन, एंड व्हेन देर इज़ नो एरो तो दैट इज़ लाइन सेगमेंट. और किसकी डेफिनेट लेंथ होती है? लाइन सेगमेंट की. सो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट. जब एक पॉइंट और एक एरो दैट इज़ अ रे, जब दोनों तरफ एरोज हों दैट इज़ अ लाइन, एंड व्हेन देयर इज़ नो एरोज तो वो क्या होती है? आपकी लाइन सेगमेंट. और डेफिनेट लेंथ किसकी होती है? लाइन सेगमेंट. सो यू विल टेक दिस पार्ट. नेक्स्ट यू विल डू थर्ड क्वेश्चंस. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन फिक्स पॉइंट P एंड Q? अगर आपको एक फिक्स पॉइंट दे दिया है P एंड Q, P और Q फिक्स पॉइंट दे दिया, तो आप कितनी लाइन्स बना सकते हो? ओनली 1 लाइन ना, क्योंकि आपने एक यहाँ से और एक यहाँ तक ही गए. सो ऑन हाउ मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ? ओनली 1. तो आपने यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है? ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? नाउ दे हैव आस्क्ड, अगर आपके पास एक ही पॉइंट हो P, तो आप कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी. कितनी भी एक पॉइंट से आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो ना, कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो अगर एक पॉइंट है. तो यू विल राइट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स. हाउ मैनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ? इनफाइनाइटली. इनफाइनाइटली देयर इज नो लिमिट. कितनी भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स. नेक्स्ट पार्ट, fifth part, sorry, you have to do fifth part. A fixed point P is given. How many rays can be drawn with P as initial point? अब भी सेम बात कही. अभी यहाँ पे लाइन कहा था, अब आपको कहा अगर एक पॉइंट है तो कितनी रेज बना सकते हो? फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन गो हेयर, यू कैन गो हेयर. यहाँ से एक पॉइंट P है आपके पास, और ये सब आपकी क्या है? A, B, C, D. PA is a ray, PB is a ray, PC is a ray, PD is a ray. इसी तरह आप कितनी भी रेज बना सकते हो. सो हेयर ऑल्सो इनफाइनाइटली मैनी रेज, क्योंकि आपसे पूछा हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन, तो उसका भी आपका क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी. यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर स्पेलिंग्स, इनफाइनाइटली मैनी रेज. Then come to question number 6. Sixth question, draw a line segment of line 5.3 centimeter. You only have to draw a line. You can see here, आपने क्या करना है? 5.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और उसको आपने नेम दे देना है AB. आपको स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हो ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट विद द पेंसिल एंड स्केल. रफली ड्रॉ नहीं करनी है, मेजर करके 5.3 सेंटीमीटर के आपने लाइन सेगमेंट बनानी है, बिकॉज मेजर इज गिवन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इट इन अ नोटबुक. मार्क 6 points P, Q, R, X, Y, Z such that P, Q, R are collinear. आपने 6 points मार्क करने हैं, और वो आपके P, Q, R क्या होना चाहिए? कॉलीनियर. तो इट मीन्स आपने यहाँ पे मार्क करना है. कॉलीनियर के लिए कैसे करोगे? एक लाइन बनाओगे. दिस इज़ अ लाइन. 7th क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, एंड यू मार्क P, Q, R.
क्योंकि कॉलिनियर कौन से पॉइंट्स को कहा था, पी क्यू आर, और कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, विच लाई ऑन अ सेम लाइन. सो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉलिनियर पॉइंट्स. और नॉन कॉलिनियर्स कौन से कहे हैं, नॉन कॉलिनियर्स आपको एक्स वाई जेड, तो आपने यहाँ पे मार्क कर देनी है एक्स वाई जेड और नीचे लिख देना है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. Now we will come to question number 8. In question number 8, there was how many lines can be drawn through 3 collinear points. कितनी लाइन्स आप 3 collinear points से ड्रॉ कर सकते हैं. अभी आपने ये collinear points ड्रॉ किया, ये पॉइंट्स थे आपके, और कितनी लाइन्स ड्रॉ हैं इसमें, ओनली 1 लाइन. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओनली 1. नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, अब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, एक्स वाई और जेड आपके नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थे. इसमें से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ, 3 लाइंस. तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, 3. अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो आप कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे, 3 लाइंस. और अगर कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे, 1 लाइन. Now come to the last question. What is the maximum and minimum number of point of intersection of 3 lines drawn in a plane? अगर आपके पास what is the maximum and minimum number of points of intersection, अगर आपके पास 3 lines draw हुई हैं, कैसे भी 3 lines हैं, तो आपने एक लाइन इसको कट कर दो, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो कितने पॉइंट्स आएंगे इसमें, 1 2 3. ये 3 लाइन्स आपने ड्रॉ करी थी, एक लाइन आपने कट कर दी, क्योंकि इंटरसेक्ट करनी है तो 2 लाइन्स तो इंटरसेक्ट होनी चाहिए. तो जब आपने इंटरसेक्ट करी तो इसमें कितने पॉइंट्स आए इंटरसेक्शन के, 1 2 3. फर्स्ट लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है. फर्स्ट लाइन जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट कर रही है तो 1 पॉइंट ये हो गया, सेकेंड ये, थर्ड ये. सो आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स ड्रॉन इन अ प्लेन, 3. और मिनिमम क्या होंगे, 0, क्योंकि अगर लाइन कट करती है तो कम से कम 1 पॉइंट तो होना ज़रूरी है, 1 पॉइंट तो होना ही चाहिए ना. सो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, 0. मैक्सिमम विल बी 3 एंड मिनिमम विल बी 0. सो ओनली 6th and 7th part you have to do it in the notebook. Rest of the parts you have to understand it properly. And please learn these geometrical concepts clearly. Thank you.